بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ غیر ملکیوں کے اقامے ویزوں میں مزید 1 ماہ کی مفت توسیع۔ جمال خاشقجی قتل کیس میں 8 ملزمان کو سزا سنا دی گئی۔ کوہستانی لباس میں سعودی طالب علم کی تصویر وائرل۔ مملکت میں ہوا کا معیار جانچنے کے لیے 80 اسٹیشنز۔ G20 کے وزرائے محنت کا آن لائن اجلاس۔ کورونا کے نئے کیسز 800 سے کم، 26 اموات۔ جدہ 20 لاکھ ریال کی کیبل چوری، ایشیائی گروہ گرفتار۔ جدہ بینک ملازم ہی چور نکلا۔ حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام۔ امیگریشن قوانین کے تحت بلیک لسٹ کتنے برس کے لیے؟ غیر ملکیوں کے اقامے ویزوں میں مزید 1 ماہ کی مفت توسیع۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت موجودہ مخصوص تارکین وطن کے زائد المیعاد خروج عہدہ، ایگزٹ، ری انٹری اور اقاموں میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق اور عاجل کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے پیر کو بیان میں بتایا کہ خروج عہدہ ویزے پر تجارتی پیشہ ہولڈر جن غیر ملکیوں کے اقامے 1 سے 31 اگست کے دوران ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں میں 1 ماہ کی توسیع مفت ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق جو گھریلو ملازمین خروج عہدہ ویزے پر مملکت سے باہر گئے ہیں اور ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں اور خروج عہدہ ویزے پر 30 ستمبر تک توسیع مفت کر دی جائے گی۔ ایسے غیر ملکی جو خروج عہدہ ویزے پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کے اقامے مؤثر ہیں، ان کے خروج عہدہ میں توسیع 30 ستمبر تک مفت ہو گئی۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو غیر ملکی خروج عہدہ یا خروج نہائی ویزا لے کر سعودی عرب میں مقیم ہیں اور سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ خروج عہدہ ویزا یا خروج نہائی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ویزوں میں 30 ستمبر تک توسیع مفت کی جائے گی۔ اقامہ جات اور ویزا جات میں توسیع خودکار نظام کے تحت ہوگی۔ توسیع کی کارروائی نیشنل انفارمیشن سینٹر اور وزارت افرادی قوت کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 2 مرتبہ 3 ماہ کی مفت توسیع کی جا چکی ہے۔ تو جی یہ جو عام المنزلی، سہ خاص، جو بھی فردی ویزے یا دوسرے ویزوں کے اوپر خروج عہدہ پہ چھٹی گئے ہوئے تھے، ان کے اقاموں کی توسیع ہو چکی ہے۔ اور میں آپ کو پروف بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ایک دوست ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہے، اس کا جو خروج عہدہ ہے یہ دیکھیں، یہ 30/9/2020 ریٹرن بیفور یہاں تک بڑھ گیا۔ یہ 2 مہینے کی چھٹی کے لیے گیا ہوا تھا، تو ابھی یہ دیکھیں 60 دن کی چھٹی پہ گیا تھا، یہ 227 دن ہو چکے ہیں۔ یہ سائے خاص کے ویزے پہ ہے، تو یہ دیکھیں، یہ پروف ہے اس کا۔ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، ویزا ویلیڈیٹی mukim.sa/ اس کے اوپر آپ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ویزا نمبر اور اقامہ نمبر ڈالیں گے تو وہ آپ کو شو کروا دے گا۔ جمال خاشقجی قتل کیس میں 8 ملزمان کو سزا سنا دی گئی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ صحافی جمال خاشقجی کے قتل کیس کے ملزمان کے خلاف حتمی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق ریاض کی فوجی عدالت نے 8 افراد کو قتل کا مجرم قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ فوجداری قانون کی دفعہ 210 کے موجب حتمی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے بتایا کہ 8 افراد کو 124 برس قید کی سزائیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 افراد کو 20 برس
एक को 10 बरस की सजा होगी, जबकि 2 को 7 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। याद रहे कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में कत्ल कर दिया गया था। तर्जुमान ने बताया कि अदालत का ये फैसला हितमी है और वाजिब अल तामील है। फौजदारी कानून की दफा 212 के तहत इस पर अमल दरामद लाजमी है। तर्जुमान ने बताया कि ये सजाएं मकतूल के वारसों की जानब से अपने हक से दस्तदारी के बाद दी गई हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जुमान ने मजीद बताया कि फौजदारी अदालत इस फैसले के बाद फौजदारी कानून की दफा 22 और 23 के तहत खाशोगी कत्ल केस का फौजदारी दावा मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। सुल्तानी हक और निजी हक हर लिहाज से खाशोगी कत्ल केस का फैसला फाइनल होगा। कोहस्तानी लिबास में सऊदी तालिब इल्म की तस्वीर वायरल। सऊदी तालिब इल्म की कोहस्तानी लिबास में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जो जनूबी मुल्कत का ये तालिब इल्म खुले मुकाम पर लैपटॉप पर ऑनलाइन एजुकेशन में मशगूल नजर आ रहा है। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक सऊदी फोटोग्राफर हसन हरूबी ने सऊदी तालिब इल्म की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हसन हरूबी का कहना है कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है। पसंदीदा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना मेरा दिलचस्प मशगला है। जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो मुझे तवक्को नहीं थी कि इससे इस कदर पजीराई मिलेगी। इस तस्वीर की खूबी यह है कि ये खालस फितरी माहौल की आईनादार है। तालिब इल्म जनूबी सऊदी अरब के कबाइल का कोहस्तानी लिबास पहने हुए लैपटॉप पर मुताले में मशगूल था। उसे पता भी नहीं था कि मैं इसकी तस्वीर ले रहा हूँ। ये 5वीं जमात का तालिब इल्म है। याद रहे कि जनूबी सऊदी अरब का मशहूर पहाड़ी लिबास गदीम वर्से की तौर पर जाना पहचाना जाता है। इसका रंग और शक्ल मुकामी खुशबूदार पौधों से मिलता जुलता है। ये कोहस्तानी इलाके के मनाजर का आकाश है। यहाँ के लोग गहरी नीली या सफेद कमीज और नीले रंग का तहबंद इस्तेमाल करते हैं और इस पर धारियां बनी होती हैं, जबकि सर पर फूलों की टोपी सजाई होती है। ये यहाँ का आम लिबास और आबाओ अजदाद से विरसे से मिला है। ममलकत में हवा का मयार जांचने के लिए 80 स्टेशन। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलकत के शहरों में आब व हवा का मयार जांचने के लिए 80 स्टेशन कायम किए गए हैं। महकमा मौसमियात और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कहा है कि सऊदी अरब में साफ हवा की निगरानी के लिए 80 स्टेशन कायम किए हैं। इनमें से 66 बाकायदा इमारतों में जबकि 14 मुतहर्रिक स्टेशन बनाए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा मौसमियात ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के बयान के हवाले से बताया कि दोनों के दुनिया में 92% आबादी आलूदा हवा का शिकार है, जिसकी वजह से हर साल 70 लाख अमवात हो रही हैं। याद रहे कि 7 सितंबर को हर साल साफ हवा का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल इसका स्लोगन नीले आसमान की खातिर है। सऊदी महकमा मौसमियात और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है कि सऊदी अरब भी साफ हवा का आलमी दिन इसी अनुमान के तहत मना रहा है। G20 के वज़राए एम्प्लॉयमेंट व मेहनत का ऑनलाइन इजलास सऊदी अरब की क़यादत में जुमेरात को हो रहा है। लेबर मार्केट के माहौल को बेहतर बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मयार बुलंद करने जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। सऊदी खबरसां अदारे SPA के मुताबिक G20 के वज़रा मुस्तक़बिल के चैलेंजों से निपटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन और मौजूदा मेहनत पॉलिसी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल करेंगे। ख़वातीन और नौजवानों को अपने कदमों पर खड़े करने जैसे अमूर पर भी ज़ेर बहस आएंगी। G20 के वज़रा अप्रैल में रोज़गार और मेहनत के वज़रा के इजलास और मार्च में G20 के कायदीन की हंगामी कॉन्फ्रेंस के अहद पैमान को अमली जामा पहनाने वाले इक़दामात का जायजा लेंगे। G20 के कायदीन ने अहद कर रखा है कि वो कोरोना वबा के बड़े असरात से निपटने और लेबर मार्केट को रवां दवा करने को यकीनी बनाएंगे। इजलास के बाद सऊदी वज़रा अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद अहमद अल राजिही ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजलास की करारदादों पर रोशनी डालेंगे। सऊदी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को सवालात भेज सकते हैं। G20 और इसकी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ तफ़सीलात के लिए www.g20.org विजिट किया जा सकता है।
कोरोना के नए केसेस 800 से भी कम, 26 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 800 से भी कम नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पीर 7 सितंबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 768 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,21,456 हो गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद व शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 886 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 2,97,623 अफराद इस मर्ज से शफा याब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 26 अफराद हलाक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 4,107 हो चुकी है। ममलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 19,726 है, जिनमें से 1,430 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद मक्का मुकरमा में रही, जहां 67 नए मरीज सामने आए हैं। जद्दा में 57, अल हफूफ 46, दमाम 17, मदीना मुनव्वरा 50, यम्बू 18, रियाद 46, जाजान 19, अल मुबर्रज़ 25, खमीस मशीद 16, अरअर 14, अबू आरिश 13, अबहा 10, नजरान 12 और कतीफ में 11 केसेस का पता चला है। अदाद शुमार के मुताबिक 26 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 12 शहरों में 2-2 और 6 शहरों में 3-3, जबकि 7 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मतअद्दी अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि पिछले 3 माह से कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, जबकि पिछले 10 दिनों में कोरोना के नए केसेस की तादाद 1,000 से कम रही है। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। जद्दा 20 लाख रियाल की केबल चोरी, एशियाई गिरोह गिरफ्तार। जद्दा में पुलिस ने 11 रुकनी एशियाई चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। गोदामों से 2 मिलियन रियाल मालियत की बिजली की केबल चुराने का इल्जाम है। मक्का रीजन के पुलिस तर्जुमान मेजर मोहम्मद अलगामदी ने सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA को बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि जद्दा में नामालूम चोरों ने मुतअद्दिद गोदामों में चोरी की वारदातें की, जहां से वो बिजली के केबल्स लेकर फरार हो गए। तर्जुमान का कहना था कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस टीमों ने जल्द ही मुल्ज़िमान का सुराग लगा लिया, जिनमें 11 पाकिस्तानी शामिल थे। मेजर मोहम्मद अलगामदी का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि मुल्ज़िमान ने 3 गोदामों में वारदात की, जहां सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने ज़ोदोको भी किया, उनसे मोबाइल और दीगर कीमती अशिया भी छीन ली थी। मुल्ज़िमान की उम्र 30 से 40 बरस के दरमियान है। उनसे मजीद तहकीकात जारी है। मसरूका केबल्स की मालियत 20 लाख रियाल बताई जाती है। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद गिरोह को प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द कर दिया गया, जहां से चालान मुकम्मल करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जद्दा बैंक मुलाजिम ही चोर निकला। मक्का रीजन के पुलिस तर्जुमान मेजर मोहम्मद अलगामदी का कहना है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट ने बैंक के सऊदी मुलाजिम को गबन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक क्राइम ब्रांच को जद्दा शहर के एक बैंक से इतला मिली थी कि बैंक के ATM से रकम गैर मामूली तरीके से निकाली गई है। बैंक इंतजामिया का कहना था कि चोरी इस कदर माहराना अंदाज में की गई कि इसका सुराग नहीं मिल सका। क्राइम ब्रांच की जानिब से चोरी की तहकीकात की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि चोरी कोई और नहीं बल्कि बैंक का ही मुलाजिम है। मुल्ज़िम जद्दा की एक ब्रांच में नस्ब ATM का जिम्मेदार है। मुल्ज़िम से इब्तदाई तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो वक्तन फवक्तन ATM से रकम निकालता रहता था। तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुल्ज़िम ने 1,20,000 रियाल ATM से निकाले थे। रीजनल पुलिस तर्जुमान मेजर मोहम्मद अलगामदी का कहना है कि मुल्ज़िम, जिनकी उम्र 40 बरस के करीब है, उसको तहकीकाती अदारे के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। बादशाह मुल्ज़िम का केस प्रोसिक्यूशन जनरल के हवाले करने के बाद चालान मुकम्मल करके क्रिमिनल कोर्ट के हवाले किया जाएगा। हौथियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम। यमनी हुकूमत की मदद और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अरब फौजी इत्तेहाद की एयर कंट्रोल कमान ने हौथी बागियों की जानिब से
सऊदी अरब पर हमले की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक अरब अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि पीर की सुबह हौसी बागी की जानिब से मुमलकत के जनूबी इलाके को बमबार ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश को बर वक्त मुदाखलत करते हुए नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने मजीद कहा कि ईरान नवाज हौसियों की जानिब से मुमलकत की जानिब हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। हौसी बागियों का मकसद मुमलकत के शहरी आबादी पर हमले करके उन्हें नुकसान पहुंचाना है, जिसकी किसी भी तरह इजाजत नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हौसी बागियों ने सऊदी अरब की जानिब ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, जिन्हें इत्तेहादी फोर्सेस की एयर कमांड एंड कंट्रोल यूनिट ने बर वक्त मुदाखलत करके नाकाम बना दिया था। इमिग्रेशन कवानीन के तहत ब्लैक लिस्ट कितने बरस के लिए? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुकाम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मुतल्ला कर दिया जाएगा। कारीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मजीद सवालात भेजे हैं। काशिफ हराल ने सवाल किया है कि सऊदी अरब से छुट्टी पर आया था, 2 बरस हो चुके हैं। मालूम यह करना है कि क्या दोबारा किसी वीज़े पर मुमलकत जा सकता हूँ? जवाब, इकामा और एग्जिट री एंट्री के कवानीन के मुताबिक जो अफराद खुरूज ओहदा पर जाते हैं उन पर लाजम है कि वह मुकर्रर मुद्दत में वापस आएँ। मुकर्रर मुद्दत में वापस न आने वालों का नाम जवाजात के मरकजी सिस्टम में फीड कर दिया जाता है, जिन पर खर्ज लम याद की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते उन्हें 30 बरस के लिए मुमलकत में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मुकर्ररा मुद्दत का इतलाक उस दिन से किया जाता है जिस दिन इकामा की मुद्दत एक्सपायर होती है। जैन उमर ने सवाल भेजा है कि मैं छुट्टी पर आया था, इकामा एक बार तजदीद हुआ, अब दोबारा नहीं हुआ। इस वक्त मेरा इकामा और खुरूज ओहदा वीज़ा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। मालूम यह करना है क्या मैं वापस सऊदी अरब जा सकूंगा? जवाब, कोरोना वायरस की वजह से मुमलकत में ताहल बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी आयद है। बैरून मुल्क से लोगों की आमद का सिलसिला बहाल नहीं हुआ, इसलिए वो तारकीन जो मुमलकत से बाहर गए हुए हैं उनके बारे में हकाम की जानिब से तीसरी बार अहकामात मसूल नहीं हुए, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के हवाले से वापसी के बारे में अहकामात का इंतजार करें। राना इशफाक ने इस्तफसार किया है कि ब्लैक लिस्ट होने वालों के बारे में मालूमात दरकरार हैं। कितने बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है? जवाब, सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत ब्लैक लिस्ट किए जाने वालों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीजा की खिलाफ वर्जी करने पर ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 बरस है। ताहम इस दौरान अगर साबिक कफील चाहे तो वो ब्लैक लिस्ट की मुद्दत के दौरान यानी 3 बरस गुजरने से कबल दूसरे वीजे पर बुला सकता है। अगर कोई शख्स अदालती सजा की वजह से ब्लैक लिस्ट होता है यानी किसी जुर्म वगैरह की वजह से, तो इसमें मुद्दत मुख्तलिफ होती है जो हर केस की नौयत के एतबार से मुकर्रर की जाती है। इसमें मुद्दत 3 बरस से लेके 5 और 10 बरस तक हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल वक्त मिलता रहे।